تو لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ شویان یایا کے ڈیسینڈنٹس کو بچانے کے لیے واپس سے ماؤنٹین اینڈ سی ریئلم میں جاتا ہے، جہاں پہ وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اصل میں کچھ ایسے ڈیمنز ہیں جو کہ ایک خاص قسم کی اسٹون پاور کا استعمال کر کے باقی سارے ڈیمنز کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں، مگر شویان ان کے وہ سارے کے سارے ڈیمونک اسٹونز آسانی سے ڈسٹروائے کر دیتا ہے اور انہیں یایا کے ڈیسینڈنٹ کی باڈی میں ڈال دیتا ہے، جس سے ان کی پاور ان کے بالکل پیک پہ آ جاتی ہے۔ اور دوسری طرف ہمیں اس اینسسٹر ہال کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر وہ اینسسٹرز آپس میں بحث کر رہے ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایک کہتا ہے کہ آخر یہاں پہ چل کیا رہا ہے، ہم لوگ ایک چھوٹے سے وان لوو کلان کو ڈسٹروائے کیوں نہیں کر پا رہے، وہ ہم لوگوں پر اتنا بھاری کیوں پڑ رہا ہے، ہم سب لوگ اینسسٹرز ہیں۔ تو دوسرا بندہ کہتا ہے کہ میرے سارے کے سارے ڈسائپلز وہاں پر مارے گئے، آخر وہاں پر ایسا ہوا کیا ہے، اور تم سب لوگ اس معاملے میں بات کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ میں نے تم لوگوں کو پہلے بھی کہا تھا کہ ایک بندہ بھیجو تاکہ وہ وہاں پہ جا کر اچھے طریقے سے انفارمیشن کلیکٹ کر لے، مگر تم لوگوں نے میری بات نہیں مانی، اور اب دیکھو تمہارے ہاتھ میں کیا آیا، بالکل بیوقوفوں والی حرکت کر کے تم نے اپنے سارے سپاہیوں کو مروا دیا ہے۔ اور سننے میں تو یہ آیا ہے کہ ڈیمن ولیج وہ اچانک سے ڈس اپیئر ہو گیا ہے۔ تو دوسرا بندہ کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ سب لوگ بے وقوف ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ لوگ ولیج چھوڑ کر کہیں دور چلے گئے ہوں گے۔ تو وہاں موجود ایک اور اینسسٹر کہتا ہے کہ میرے اینالیسس کے حساب سے وہ لوگ بہت ہی زیادہ ویک ہیں، مگر ہم لوگ یہ نہیں جانتے کہ آخر ان لوگوں کے پاس یہ پاور کہاں سے آئی، اور ان لوگوں نے ہمارے اسیسینیٹرز کو کیسے مارا، کیا ان کے پاس ابھی بھی اسی طرح کی کوئی پاور باقی ہے؟ یہ سن کر ایک بندہ بالکل پاگل سا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم لوگ بس ہر وقت آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ الجھتے ہی رہنا۔ یہ بات سنتے ہی دوسرا اینسسٹر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں میں تو ایک بات بھول ہی گیا تھا، تم نے آج سے 6 مہینے پہلے کچھ ڈیمنز کو مار دیا تھا کیونکہ وہ صرف اور صرف تمہارے راستے میں آ رہے تھے، مگر ڈیمن سے لڑنے کی وجہ سے تمہارے بھی بہت سارے لوگ مارے گئے تھے، تمہارے ہاتھ میں بھی کچھ بھی نہیں آیا تھا۔ مگر پھر دوسرا والا کہتا ہے کہ وہ سب لوگ انڈر کور ہو گئے تھے اور بہت ہی لمبے ٹائم تک وہاں پر چھپ کر ہمارا انتظار کر رہے تھے، ہمیں کیا پتا تھا کہ وہ لوگ پہلے سے ہی وہاں پر کوئی ڈیمن آرمر ریفائن کر رہے ہیں، ہمارے پاس یہ نیوز بہت ہی زیادہ لیٹ پہنچی تھی جس کی وجہ سے ہم لوگ کوئی ریسپانس نہیں کر پائے، اگر یہ نیوز ہمارے پاس ٹائم سے پہنچ جاتی تو ہمارے گیانبو کلان کا اتنا زیادہ نقصان نہ ہوتا۔ یہ دیکھ کر وہاں موجود ایک لیڈی کہتی ہے کہ کیا تم لوگوں کا بس یہی مسئلہ ہے؟ تو دوسرا ماسک مین کہتا ہے کہ یہ سب کچھ اس کے ایروگیٹ ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے، مگر وہ لیڈی کہتی ہے کہ میں نے اتنا زیادہ ٹائم تک ویٹ کیا صرف اور صرف اس نیوز کے لیے، تم لوگ ایک دوسرے کو بغیر کسی آتھورائزیشن کے مارنا چاہتے ہو۔ تو دوسرا ماسک مین کہتا ہے کہ تم کیا کہنا چاہتی ہو، کیا اس میں میرے ٹیانگو کلان کا فالٹ ہے؟ وہ لوگ وہاں پر آپس میں بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ایک بندہ کہتا ہے کہ تم اس کا الزام میرے ہوانگ پو ولیج پر مت لگاؤ، مگر دوسرا کہتا ہے کہ میرا ٹیانبو کلان وہ بھی اس سے بالکل آزاد ہے، تم اس پر بھی الزام نہیں لگا سکتے، مگر پہلے والا کہتا ہے کہ تم جان بوجھ کر ہمارے راستے میں ایسے مسئلے کھڑے کر رہے ہو تاکہ ہمارا ہوانگ پو کلان وہ بدنام ہو۔ مگر اتنے میں اچانک ان لوگوں کا لیڈر وہاں پر آ جاتا ہے اور ان لوگوں سے کہتا ہے کہ تم سب لوگ فی الحال اپنے چھوٹے چھوٹے مسئلے لے کر یہاں پہ مت بیٹھ جایا کرو، ہم لوگوں کو فی الحال وان لوو کلان کے بارے میں سوچنا ہے۔ اسے وہاں پر دیکھ کر وہ سارے کے سارے شانت ہو جاتے ہیں اور اسے وہاں پر گریٹ کرتے ہیں، جس کے بعد وہ ماسٹر ان لوگوں سے کہتا ہے کہ اس میجک آرمر کے بارے میں مجھے کچھ بتاؤ، اس کا کوئی کلو ملا کیا تمہیں؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ میجک آرمر ملے ہیں، مگر یہ سارے کے سارے آرمرز ایک مائن کے اندر موجود تھے، مگر اس مائن کو بھی کسی نے ڈسٹروائے کر دیا ہے، اس کے پیچھے کا کیا ریزن تھا ہمیں ابھی تک معلوم نہیں پڑا۔ تو وہ لیڈی کہتی ہے کہ ہمیں بھی نہیں معلوم کہ آخر وہاں پر گیا کون تھا اور کس کی وجہ سے وہ مائن پوری طرح سے ڈسٹروائے ہوئی ہے، مگر ان کا ماسٹر کہتا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اسے کس نے ڈسٹروائے کیا ہے، ہمیں بس اب یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے اس ڈیول ماسٹر کو ڈھونڈنا ہے جس نے وہ میجک آرمر بنایا تھا، وہ لوگ ہمارے لیے بہت بڑا سر درد بن سکتے ہیں، اس لیے ہمیں انہیں اپنے راستے سے ہٹانا ہی ہوگا، انہیں ڈھونڈو، چاہے انہیں ڈھونڈنے کے لیے تمہیں زمین اور آسمان ایک کرنے پڑے تو بھی کر دو۔ مگر دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ یایا اپنے ڈیسینڈنٹس کے سامنے اپنی تعریفیں کرنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ٹیان لان سیٹ کا سب سے پاورفل ڈیمن ہوں، پچھلی ساری باتیں چھوڑ دو، وہ ساری کی ساری بس مس انڈرسٹینڈنگ تھی، تم سب لوگ میرے ڈیسینڈنٹس ہو، اس لیے اب تم سب لوگوں کو میری تھوڑی سی ریسپیکٹ کرنی ہوگی، کیونکہ اگر تم لوگ میری ریسپیکٹ نہیں کرو گے تو ٹیان لان سیٹ کے لوگ بھی میری ریسپیکٹ نہیں کریں گے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ میرے ماسٹر کے آگے میری زیادہ ریسپیکٹ کیا کرو اور مجھے تم لوگوں میں سستی دکھائی نہیں دینی چاہیے۔ یہ سنتے ہی ایک ڈیمن کہتا ہے کہ ماسٹر
आप ये क्या कह रहे हैं, आप हमसे क्या चाहते हैं? तो जीवेन उससे कहती है कि बेवकूफ, मास्टर चाहता है कि हमें और भी ज्यादा एक्टिव होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा टास्क कंप्लीट करने चाहिए। हमें इन चीजों के बारे में अच्छे से सोचना चाहिए और किसी भी मामले में हमें हार नहीं माननी। ये सुनकर याया कहता है कि जरा इन दोनों को देखो, ये दोनों कितना एक्टिव हैं। और वैसे भी मैं टियानलान सेक्ट में ऐसे ही नहीं आया, मैं मास्टर के काम करता हूँ। ये सुनकर वो लोग कहते हैं कि मास्टर, आप तो 4 डीमन क्लान के लीडर हैं, तो फिर आप टियानलान सेक्ट के मैजिक पेट क्यों बन गए हैं? ये सुनकर याया कहता है कि तुम लोग जानते ही क्या हो, मैं कोई मामूली पेट नहीं हूँ, मैं एक एंसेस्टर पेट हूँ। तुम्हें शायद मालूम भी नहीं होगा कि मैं इस दुनिया के सारे डीमन से ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। सिर्फ अपने एंसेस्टर के साथ रहने से ही मुझे वो सब कुछ मिल जाएगा जो कि मैं अकेला खुद से हासिल नहीं कर सकता। और तुम लोग पहले ही मेरे मास्टर की स्ट्रेंथ तो देख ही चुके होगे कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। और तुम लोग फ्यूचर में देख लेना कि मैं कहां पहुंच जाऊंगा, तुम लोग मेरे डिसेंडेंट होने पर भी नाश करोगे। ये सुनकर वो सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और अपने मास्टर के आगे झुक जाते हैं, जिस पर याया कहता है कि बहुत ही अच्छा, तुम लोगों को बात समझ में आ गई, मगर क्या तुम लोगों को मालूम है कि मास्टर इस वक्त कहाँ चले गए हैं? तो वो मास्कमैन कहता है कि मैं जानता हूँ वो कहाँ गए हैं। असल में मास्टर के साथ मौजूद उस खूबसूरत लड़की ने मुझसे पूछा था कि किसी ऐसी जगह जाना है जहाँ पे उन्हें काफी अच्छी टाइम मिल सके, इसीलिए मैंने उन्हें टियानशिया लुओ के बारे में बता दिया। क्या आपको लगता है कि मैंने उन्हें सही जगह के बारे में बताया है? क्योंकि मुझे वहाँ की चाय बहुत ही अच्छी लगती है। मगर जीवेन कहती है कि टियानशिया लुओ वो तो एक डीमन टेरिटरी है। ये सुनकर वो मास्कमैन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और फिर जीवेन उससे कहती है कि क्या तुम्हें डीमन क्लान के रूल्स के बारे में नहीं मालूम? जिस पर वो मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं भूल गया। तो जीवेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुमने उन्हें किस जगह भेजा है? क्या तुम जानते नहीं हो कि वो जगह कितनी ज्यादा खतरनाक है? इतने में वो लोग याया की तरफ देखते हैं तो उसके बिल्कुल होश ही उड़े हुए होते हैं, जिस पर वो काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि मास्टर, आपके साथ क्या हुआ है? आप इस तरह क्यों रिएक्शन दे रहे हैं? मगर वो मास्कमैन फिर से बेवकूफों वाली बातें करना शुरू करता है और कहता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे मास्टर पर हजारों डीमंस का जॉइंट अटैक हुआ है। मैंने आज से पहले इस तरह के खतरनाक एक्सप्रेशन नहीं देखे। कहीं मास्टर सच में बीमार तो नहीं होने वाले? मगर वहाँ मौजूद दूसरा डिसेंडेंट कहता है कि मास्टर, आपको क्या हुआ है? वो लोग मास्टर को बार बार जू चेंग के नाम से पुकार रहे होते हैं। इतने में अचानक से याया बिल्कुल उदास हो जाता है और कहता है कि सब कुछ बर्बाद हो गया, मैं अब कहीं का नहीं रहूंगा। मास्टर, आप मुझे अपने साथ लेकर क्यों नहीं गए? ये कहकर वो रोना शुरू कर देता है और दूसरी तरफ हमें शुयान को दिखाया जाता है जो कि टियानशिया लुओ डीमन क्लान में जाता है। तो उन लोगों के सामने एक छोटा सा टावर होता है, जिसे देखकर वो लोग कहते हैं कि चलो यहाँ पर जाकर देखते हैं। और फिर हमें उस टावर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक खूबसूरत लड़की होती है और कुछ लोग उसे अपनी तरफ से इम्प्रेस करने के लिए कुछ गिफ्ट दे रहे होते हैं। और उनमें से एक बंदा कहता है कि मेरा लिंगशियाओ इमोर्टल सेक्ट वो इस तरह के छोटे मोटे ट्रेजर्स तो आसानी से अफोर्ड कर सकता है। जिस पर वो लड़की खुश होते हुए कहती है कि आप सच में बहुत ही अच्छे हैं, मगर हमें इस तरह के ट्रेजर्स की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वहाँ मौजूद एक डिसाइपल कहता है कि आपको ये मेरा स्पिरिचुअल एनर्जी वाला तिलिस्मान बहुत पसंद आएगा, आप ये एक्सेप्ट कर लीजिए। ये हमारे क्लान का सबसे बेस्ट तिलिस्मान है, एक मर्तबा आप इसे देख तो लीजिए। मगर वो लड़की कहती है कि ये अच्छा है मगर मुझे ये नहीं चाहिए। जिसके बाद वो लड़के उन्हें बताती है कि असल में मैं कहना ये चाहती हूँ कि हम लोग 100 साल तक फेरी टी को यूज नहीं कर सकते। जिस पर वो लोग कहते हैं कि क्या कहा तुमने? 100 साल? ये तो बहुत ही लंबा टाइम है। अगर इतने लंबे टाइम में डीमन और इमोर्टल्स के बीच में फिर से कोई वार हो गई तो फिर क्या होगा? और ऊपर से ये टी तो 10 साल में एक मर्तबा पिक की जा सकती है। इतने में अचानक फिर वहाँ पर शुयान आ जाता है, जिसे देखकर वो सब लोग काफी हैरान होते हैं क्योंकि शुयान उन सब लोगों को इग्नोर करते हुए सीधा आगे की तरफ चला जाता है। जिस पर वो लोग कहते हैं कि ये बंदा है कौन? क्या इसे यहाँ के रूल्स के बारे में नहीं मालूम? यहाँ पहले जो आता है उसे ही पहले सर्व किया जाता है। तो दूसरा बंदा कहता है कि हाँ, ये ठीक कह रहा है, हमारा मसला अभी तक हल नहीं हुआ और ऊपर से ये बंदा हमारे से आगे जाकर खड़ा हो गया है। इतने में सानियान उस लड़की से आकर कहती है कि क्या हमारे लिए तुम चाय का बंदोबस्त कर सकती हो? ये सुनकर वो बिल्कुल हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या मैंने सही सुना? ये मुझसे चाय का कह रहे हैं। वो सब लोग हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये बंदा यहाँ पर चाय पीने के लिए आया है, लगता है कि शायद हमारे यहाँ पर होने का कोई भी फायदा नहीं है, इसे तो किसी से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मुझे पूरा यकीन है कि ये बंदा किसी बड़ी फैमिली से नहीं होगा। मगर दूसरी तरफ शुयान उन लोगों के सामने जाकर बैठ जाता है, जिस पर वो लोग कहते हैं कि कहीं ये बंदा किसी
लैंडलॉर्ड की पोजीशन पर तो नहीं है। इतने में हमें अचानक वहां पर वही सिबलिंग ब्रदर एंड सिस्टर दिखाई देते हैं जो कि उसी रेस्टोरेंट पर पोछा लगा रहे होते हैं। वो लड़का देखता है कि नीचे कुछ शोर हो रहा है, तो वो एक जगह से झांक कर देखता है तो नीचे उसे कुछ दिखाई देता है, जिस पर वो कहता है ये बंदा कुछ जाना पहचाना लग रहा है। जिसके बाद उसकी नजर शुयान पे पड़ती है तो वो कहता है कि ये तो वही है। वो अपनी सिस्टर से कहता है कि जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, तो उसकी सिस्टर फौरन से उसके पास आती है और वो लोग नीचे झांक कर देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि शुयान वहां पर आ चुका है। और वो लोग कहते हैं ये बंदा तो उसी बर्ड डीमन के साथ था ना, मगर ये यहाँ पे क्या करने आया है। तो वो लड़का कहता है कि सिस्टर मुझे लगता है कि ये जगह कोई मामूली जगह नहीं है। अगर ये लोग यहाँ पर आए हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। ऐसा लग रहा है कि जैसे डीमन और इमोर्टल्स के बीच में एक नई सिचुएशन क्रिएट होने वाली है। और दूसरी तरफ वो सारे लोग कह रहे होते हैं कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया, लगता है कि अब बहुत जल्द यहाँ पर एक बहुत बड़ी फाइट होने वाली है। इतने में अचानक शुयान गुस्से में आकर कहता है कि मुझे जल्दी से चाय चाहिए। ये कहते ही वो फौरन से अपनी बॉडी से एक ओरा रिलीज करता है जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओरा होता है। वो ओरा इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि बाहर के लोग भी उसे फील कर रहे होते हैं और वो ओरा बाहर जिस बंदे से भी टकराता है उसे उठाकर दूर फेंक देता है। और फिर वहां पे हमें एक और लड़की को दिखाया जाता है जो कि कहती है कि लगता है कि जिस एंसेस्टर को यहाँ पे आना था वो आ गया है। और दूसरी तरफ वो सिबलिंग ब्रदर एंड सिस्टर कहते हैं कि हम लोगों ने इसके बारे में गलत सोचा था, ये तो काफी स्ट्रॉन्ग है। इसने जानबूझकर उस बर्ड डीमन को पहले भेजा था ताकि वो हम लोगों को कंफ्यूज कर सके, मगर शायद ये इसकी बदकिस्मती है क्योंकि हमें इसके बारे में अब सब कुछ पता चल गया है। तो वो लड़का कहता है कि अब हम क्या करें, ये तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा सर दर्द बन जाएगा। हमें किसी तरह कोई रास्ता ढूंढकर अपने एंसेस्टर तक ये मैसेज पहुंचाना ही होगा। और दूसरी तरफ हमें सानियान को दिखाया जाता है, वो वहां पे खड़ी हुई उसी लड़की से कहती है कि क्या हुआ, तुम अभी तक यहाँ पे खड़ी हुई क्यों हो, तुम्हें मालूम नहीं है कि हम लोग यहाँ पर चाय पीने के लिए आए हैं। इतने में शुयान जैसे ही पीछे पलटकर देखता है तो उसे वहां पर एक बहुत बड़ा दरख्त नजर आता है। वो दरख्त उसे कोई खास दरख्त लग रहा था, जिसके बाद अचानक से वो सानियान से कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हमें अच्छी चाय वहां ऊपर मिलेगी। तो ऊपर से आवाज आती है कि अगर तुम्हें अच्छी चाय पीनी है तो फिर तुम ऊपर आ जाओ। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।